Next, I would like to invite Mr. Amit Jain. He is an alumnus of Financial Planning and Standards Board USA and the Indian Institute of Banking and Finance. He is the co-founder at Ashika Global Family Office Services and the ex-country head of Reliance Capital Group Company. He is also a member of the mentorship board of Nexus for Asia Pacific, and he has also mentored a lot of startups from IIM, IITs and the DU. Thank you, Prakash, for such a nice introduction for all the panelists and everyone. I welcome you all to this panel discussion. I'm sure you all must have been inspired by whatever you heard so far. You will be surprised to know, or maybe you will be happy to know, we have panelists who have made money in quite a lot of money. Someone has invested 1 crore, suppose they have invested. One person has made 18 crores in 4 years, another one has made 50 crores in 3 years, yet another one has made 80 crores in 3 years, investing 1 crore and making 80 crores in 3 years. You may be thinking, just figures and all. I can give you the name of the company also. It's Goki. And yet another one has made 160 crore, investing 1 crore and making 160 crore in 3.5 years. And the company's name is Grow. And all of these are sitting here. They are all experts. I'm sure all of you would like to make money. So you will have ample opportunity. You can hear from their experience and learn from it. I'm sure the journey will be great. You will be knowing, like you would like to know where to invest, which company, how to judge a company, which are the things to be seen, when to exit, what is the valuation. All these will be answered now with our panelists who are super experienced. See, these are the main points what you should look for. But there are a number of other things which you need to look for also in the startups. I'm sure some of the panelists here can throw some light on it. I think adding to Narendra ji's point, हमें 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. एक नरेंद्र जी ने कहा कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. नंबर 1, अगर वो प्रॉब्लम जेन्युइन है और एक मास पॉपुलेशन को सर्व करती है, ठीक है, तो हमें शायद वो स्टार्टअप बहुत अच्छा लगता है. नंबर 1. नंबर 2, उस स्टार्टअप के ऊपर जो फाउंडर है उसका थॉट प्रोसेस क्या है. बिकॉज फाउंडर्स 2 तरीके के होते हैं. अगर हम हिंदुस्तान में देखते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, एक जो स्टार्टअप करते हैं बिकॉज उनको पैसा रेज करना है. दूसरे फाउंडर्स वो होते हैं जो पैसा रेज करके उस बिजनेस को रन करना चाहते हैं लॉन्ग रन के अंदर. जहाँ हमें लगता है कि फाउंडर लॉन्ग टर्म के लिए कमिट करना चाहता है और बहुत जल्दी एग्जिट नहीं लेना चाहता या बहुत जल्दी अपनी इक्विटी को एग्जिट नहीं करना चाहता. हमें लगता है हमारा कंफर्ट उस फाउंडर के एम्बिशन के साथ ज़्यादा मिलता है रादर देन फाउंडर जो बहुत जल्दी एग्जिट करने की मूड में होता है. बिकॉज इट शोज कि उसको अपने बिजनेस से बहुत विश्वास है. अगर हम लिस्टेड स्टॉक मार्केट में बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो आज भी सेंसेक्स 3000 से 60,000 हो गया, आज 54,000 के आसपास है. पर अभी भी लिस्टेड कंपनीज के अंदर 80 और 90% कंपनीज के अंदर फाउंडर्स के पास 51% से ऊपर इक्विटी है. बिकॉज दे आर सीरियस अबाउट देयर बिजनेस. दे नो कि बॉस मुझे बिजनेस चलाना है ना कि बेचना है. तो हमें लगता है कि फाउंडर्स की वो जो एक इंटीग्रिटी है या उसका एक जो वैल्यू सिस्टम है, हम उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. इन एडिशन टू अदर हाइजीन फैक्टर जो नरेंद्र जी ने बात की उसके बारे में. Now Mr. Abhishek Lunka, taking it forward, who was also a tracking instructor before starting his own business and investing in startups. It's difficult to go for tracking, and it's difficult also to judge which startup to invest in, what to see in a person who is the founder, and which business to invest in. So I think taking clue from Abhishek bhai, there are 2 points he highlighted. Number 1, टाइमिंग बहुत मैटर करता है कि आप कब पैसा रेज करते हैं या कब आप वैल्यूशन रेज करते हैं. इसका एक ही एग्जांपल है और हम सब उससे इमीडिएटली कनेक्ट कर पाएंगे. एक टाइम के ऊपर फ्लिपकार्ट और स्नैपडील दे वर कॉम्पिटिटर्स एंड टुडे फ्लिपकार्ट इज इन द स्काइज एंड स्नैपडील वी इवन हार्डली सी. सो वो टाइमिंग जो है वो बहुत मैटर करता है अगर आप स्टार्टअप स्पेस में इन्वेस्ट करते हैं. नंबर 1. नंबर 2, अगर हम टेक स्पेस की बात करते हैं तो उसमें भी हमें काफ़ी हद तक बिजनेस मॉडल पे फोकस करना पड़ेगा. 10 साल पहले मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ थी. एक था पेटीएम में इन्वेस्ट करने का, दूसरा था ऊबर के अंदर. अगर मैं एज ए इन्वेस्टर एवेल्यूएट करता हूँ उनके बिजनेस मॉडल को,
तो पेटीएम का जो बिजनेस मॉडल था वो सिर्फ डिस्काउंट के ऊपर बेस करता था, वो कोई परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा था, ना उसमें कोई कंज्यूमर के अंदर बिहेवियर शिफ्ट आने वाला था। नंबर 1। नंबर दूसरा ऑप्शन था मेरे पास ऊबर का। ऊबर भी डिस्काउंट दे रहा था क्योंकि 6 रुपये पर किलोमीटर पे अपनी गाड़ी को टैक्सी को कनेक्ट कर रहा था, पर वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था लोगों की, बिकॉज उस टाइम पे टैक्सी ड्राइवर्स जो है मनमाने रेट पे आपको टैक्सी हायर करवाते थे, राइट। एंड अल्टीमेटली उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि टैक्सी ड्राइवर्स की मनमानी को ख़त्म करते हुए आपको एक चीज़ अवेलेबल करी 24/7 और आपको सही दाम पे उसको अवेलेबल किया। तो जो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग था वो परमानेंट था। पेटीएम का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग था वो टेम्पररी था और केवल उसने ऑफलाइन डिस्काउंट को ऑनलाइन डिस्काउंट में कर दिया, दैट्स इट। सो यही रीज़न है कि आज ऊबर जो है अभी भी वही है जहाँ वो था, और पेटीएम आईपीओ के बाद जो है काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है, करीबन 70% डिस्काउंट का प्रॉब्लम है। तो हमें टेक के साथ साथ उस बिजनेस मॉडल को भी वैल्यूएट करना पड़ेगा कि जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं वो क्या परमानेंट इन नेचर है, नंबर 1, या वो टेम्परेरी प्रॉब्लम है, केवल ऑफलाइन से ऑनलाइन मूवमेंट है। अगर वो ऑफलाइन से ऑनलाइन मूवमेंट है तो मुझे शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आई लूज दैट वैल्यूएशन। Nicely said. In a startup which is solving the problem, is a permanent problem or not? He said rate of change is very fast, so we have to see the changes. Like it was very well stated in the book by Alvin Toffler, Future Shock, where the rate of change is really fast, very correct. This change which is happening in today's startup and the earlier startups also, maybe 1990s and now 2020s, what is the difference between that thing, what was happening now there and what is happening now? देखिए, स्टार्टअप आज भी हैं और स्टार्टअप 1990s के अंदर भी थे, और जो 1990 के स्टार्टअप थे उनका आज नंबर जो है वो करीबन 4.5 करोड़ का है। मतलब आज 4.5 करोड़ जो 1990 के स्टार्टअप थे वो आज एसएमईज बन चुके हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को क्रिएट किया है, जो जीडीपी के अंदर करीबन 15% कंट्रीब्यूट करते हैं और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। पर उस समय का जो स्टार्टअप का कल्चर था वो बहुत डिफरेंट था। आदमी स्टार्टअप करता था बिजनेस का ये सोच के कि मुझे ये बिजनेस 30 साल चलाना है, मुझे वैल्यू क्रिएट करनी है। पर आज के स्टार्टअप में थोड़ा सा डिफरेंस है, और यही रीज़न है कि उस वक्त के स्टार्टअप शायद 90% सक्सेस रहे और आज के स्टार्टअप सिर्फ 10% सक्सेस हो पाते हैं। और वो रीज़न है माइंडसेट का। पहले आप वैल्यू क्रिएट करना चाहते थे बिजनेस करके, और आज आप वैल्यूएशन क्रिएट करना चाहते हो बाय डूइंग अ स्टार्टअप एंड यू वांट टू एग्जिट विद इन 3 to 5 years। ये जो माइंडसेट है ये बहुत हेल्दी माइंडसेट नहीं है, ना कि हमारी इकोनॉमी के लिए माइंडसेट अच्छा है ये वाला, ना हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिकॉज उसमें काफ़ी कैपिटल बर्न हो सकता है एंड इन्वेस्टर्स में लूज देयर मनी। सो जो माइंडसेट है 1990s का, जिन्होंने हिंदुस्तान को खड़ा किया, और जो आज का स्टार्टअप का माइंडसेट है वो बहुत अलग है। तो हमें लगता है कि अगर ये माइंडसेट उसी पैशन के साथ हो कि मुझे बिजनेस 30 साल के लिए करना है, मुझे बिजनेस बेचना नहीं है, तो आई एम श्योर वी कैन हैव अ फैंटास्टिक कल्चर गोइंग फॉरवर्ड।